Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in another episode of chapter 6 Physical and Chemical Changes, class 7th NCERT. Alright, so in today's video we are going to discuss exercise questions. Okay, next, तो first question हमारे पास है classify the changes involved in the following processes as physical or chemical changes. Alright, so first changes हमारे पास क्या है? Photosynthesis. In first chapter nutrition in plants में we already discussed this process. Plants do photosynthesis, they produce their own food. So this is a chemical change. Alright, next है हमारे पास dissolving sugar in water. Nothing new is formed. We can extract sugar again by the process of evaporation. So this is physical change. Okay, next है burning of coal. Burning of coal is a chemical change because coal burn करके हमें क्या दे रहा है? Heat दे रहा है. With the help of that heat we produce electricity. So this is a chemical change. Melting of wax. Melting of wax is a physical change. Only wax is melting. Okay, nothing new is formed. Just a state change from solid to liquid. Okay, next is beating aluminium to make aluminium foil. Nothing new is formed. Aluminium का shape and size change हो गया. So nothing new is formed. So this is a physical change. Next, digestion of food. Digestion of food is a chemical change because food completely changed, give us energy, nutrients. Right? We discussed already this in second chapter, nutrition in animals. Okay. So this question is done. Second question, state whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebooks. Okay, so first question है हमारे पास, cutting a log of wood into pieces as a chemical change. So cutting of wood को सिर्फ cut करना is a physical change. wood तो wood ही है अभी भी, बस क्या हुआ, हमने उसकी shape change कर दी, size change कर दिया. So it's a physical change, not a chemical change. So this statement is false. Okay, next है formation of manure from leaves is a physical change. Formation of manure from leaves is a chemical change because पहले leaves थी, अब वो manure बन गया, खाद बन गया, एकदम change हो गई composition, something new is formed. So this is a chemical change. So this statement is also false. Next, iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. This statement is true. We already read about this process, galvanization. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस. आयरन एंड जो रस्ट है वो सेम सब्सटेंस है. दिस इज फॉल्स. आयरन एंड रस्ट आर नॉट द सेम सब्सटेंस, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. ट्रू. कंडेंसेशन क्या है? सिंपली फिजिकल चेंज है. इट इज नॉट अ केमिकल चेंज. सिंपली क्या हो रहा है? गैस कन्वर्ट हो रही है इनटू लिक्विड. सो स्टेट चेंज हो रहा है. नथिंग न्यू इज फॉर्म. वाटर इज स्टिल वाटर. पहले वो वेपर फॉर्म में था, नाउ इट इज इन लिक्विड फॉर्म. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स in the following statements. First statement हमारे पास है, when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर बनेगा. तो यहाँ पे क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट. ऑलराइट. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हमें पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. विनेगर का क्या है? एसिडिक एसिड. ये आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर. तो दो मेथड्स हमने किए थे, पेंट करना या तो, और ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन. ओके, सो ये मेथड्स हो गए. नेक्स्ट हमारे पास है changes in which only dash properties of a substance change are called physical changes. तो physical change में कौन सी property change होती है? खाली physical properties change होती हैं. Nothing new is formed. Appearance, shape, size, state ये सब change होता है. तो ये होती है physical changes. Okay, जो appearance वाले changes हैं जिनको हम reverse भी कर सकते हैं. Alright. नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. कौन से वो चेंजेस हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रहे थे? हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया विद प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स. केमिकल चेंजेस. तो आंसर क्या हो गया? केमिकल चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लाइम जूस. जब हम बेकिंग सोडा को लाइम जूस में मिक्स करेंगे, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज? एक्सप्लेन. तो आप ध्यान से देखो, ये वाला रिएक्शन हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है. हमने किस में परफॉर्म किया था? बट बेकिंग सोडा एंड विनेगर में. यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्या किया?
विनेगर की जगह पे लेमन जूस ले लिया, बट हमें पता है हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर ऑलरेडी किया है, उसमें हमने देखा है कि जो विनेगर है वो क्या है, वो एसिड है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेस को एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमें पता है जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगी। हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होने का टेस्ट भी किया था। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बबल्स प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, समथिंग न्यू इज फॉर्मिंग। तो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, केमिकल चेंज। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको वैसे ही लिखोगे इन द सेम वे, बिल्कुल, लाइम जूस प्लस बेकिंग सोडा गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमने परफॉर्म किया था, लाइम वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे एंड देन क्या होगा, वो जो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये रिएक्शन हो रहा है। ये जो लेमन जूस है ये क्या है, एसिडिक है, ये हमें पता है। एंड बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हमने किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, वही रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और ये रिएक्शन कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। ओके, बिकॉज समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों ही होते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, पहले तो हमें बताना है वो कौन से दो चेंजेस हैं। ओके, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो अब हमें क्या बताना है, ऐसा ही हमें एक और एग्जाम्पल देना है जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज साइमल्टेनियसली हो रहा है। ओके, सो पहले हम कैंडल को डिस्कस करते हैं कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। जब हमने लिखा कैंडल, कैंडल आपको पता है ऐसे दिखती है। ओके, तो यहाँ पर एंड यहाँ पे हमारी लिड होती है एंड यहाँ से फ्लेम निकल रही होती है, लाइट, ब्राइट लाइट, ये हमारी कैंडल हो गई। तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें बताना है इस कैंडल बर्न में फिजिकल चेंज कौन सा हो रहा है, ओके, एंड केमिकल चेंज। ओके, तो अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। सिंपली जो वैक्स मेल्ट हो रही है वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये अभी हमने ऊपर एग्जांपल में भी डिस्कस किया था। सिंपली वैक्स का मेल्ट होना क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज इसमें क्या है, केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ गैस विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2। जो इसमें से गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, CO2 है। बिकॉज आपको पता है जब भी कोई चीज़ बर्न होगी तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी, और जब वो अपने अंदर से हीट निकालेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ना जब हम भी ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन एंड रिमूव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही इन द सेम वे जब फायर जल रही होती है, ओके, तो फायर जब बर्न हो रही होती है तो फायर के आसपास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि फायर बर्न करते टाइम ऑक्सीजन यूज कर लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, समथिंग न्यू बन रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, जब भी कोई भी चीज़ बर्न होगी तो वो ऑक्सीजन यूज करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगी। ओके, सो ये हो गया हमारे पास केमिकल चेंज, एंड ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अब इसी का हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज साइमल्टेनियसली हो रहा है। ओके, तो वो क्या हो सकता है, आप खुद सोचो, पहले 1 मिनट के लिए आप सोचो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमने पढ़ा भी है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें आएगा आंसर हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड में साइमल्टेनियसली दोनों चेंजेस होते हैं। जैसे कि देखो, फिजिकल चेंज कौन सा है कि मैंने क्या किया, मैंने दाल चावल मिक्स किए और मैंने उसको खाया, तो मेरे दांत क्या कर रहे हैं, उसको सिंपली बस जो दाल चावल के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये कौन सा चेंज है, ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बस ब्रेकिंग ही तो हो रही है, मतलब जैसे ग्राइंडिंग कर दी एक तरीके से, दांत क्या ग्राइंड कर रहे हैं। ओके, हमने डिस्कस किए थे सारे टीथ वगैरह सब कुछ, तो फिजिकल चेंज है। एंड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इसमें क्या है, जब फूड हमारे कहाँ गया,
स्टमक में गया तो वहाँ पे HCl ने क्या करा, डाइजेशन स्टार्ट कर दी। तो ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। HCl एक्टिवेट हुआ और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट डाइजेशन, ये सब क्या है, ये हमारे पास क्या हो गए, केमिकल चेंज हो गए। आपको पता है ना प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है डाइजेशन के बाद, अमीनो एसिड्स में। तो ये कौन सा चेंज है, ये परमानेंट चेंज है, केमिकल चेंज है, कुछ नया बन गया। पहले वो प्रोटीन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड्स में। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ये हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड में क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली फिजिकल चेंज भी हो रहा है एंड केमिकल चेंज भी हो रहा है, इन द सेम वे कैंडल में जैसे हो रहा था। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। हम कैसे बता सकते हैं कि सेटिंग ऑफ कर्ड बनना केमिकल चेंज है। क्यों, ध्यान से देखो, आपको पता ही है जब हम क्या करते हैं, जब हम मिल्क लेते हैं एक बाउल में, हमने मिल्क लेते हैं, आपने देखा होगा कभी, आप अब अगर आपने नहीं देखा तो अब आप अपनी मम्मी को देखना कि आपकी मम्मी कर्ड कैसे प्रोड्यूस करती है फ्रॉम मिल्क। तो क्या करती है, मिल्क लेती है, उसको थोड़ा सा लीक वार्म करती हैं, हल्का वार्म करती हैं एंड देन उसमें 1 स्पून जो ऑलरेडी उनके पास कर्ड है वो डाल देती हैं। तो 1 स्पून कर्ड डालने के बाद वो उसको ओवरनाइट छोड़ देती हैं। ओवरनाइट छोड़ने के बाद जो दूध है वो एकदम क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाता है और दूध का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। पहले दूध न्यूट्रल था, अब दूध कैसा होता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है, मतलब थोड़ा एसिडिक हो जाता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, कुछ नया बन गया, अब वो खट्टा हो गया। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो कर्ड है वो क्या है, कर्ड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड cutting it into small pieces are considered as 2 different type of changes। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको अभी हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया था सिंपली कट करना, वुड को सिंपली अलग अलग छोटे छोटे पीस में या बड़े बड़े पीसेस में अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपने क्या किया, कट कर दिया। बट आपको अभी भी टेक्सचर में, दिखने में वो क्या लग रही है, वुडी लग रही है। आप बोलोगे कि स्क्वायर कट की वुड है, सर्कुलर कट की वुड है, अब यही तो बोलोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे ना कुछ नया बन गया, नहीं। तो ये कौन सा चेंज है, सिंपली कटिंग क्या है, सिंपली फिजिकल चेंज है। जैसे कि मैं अगर मैंने सपोज एप्पल लिया, पहले वो एप्पल पूरा गोल था, मैंने उसको कट कर दिया, पर रहा तो वो अभी भी एप्पल ही ना। बट जब मैंने उसको खा लिया और उसका डाइजेशन हो गया तो वो कौन सा चेंज हो गया, तब वो केमिकल चेंज हो गया। ओके, तो कटिंग, चॉपिंग, ये सब कौन से चेंज होते हैं, ये फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ नया नहीं बना, बस शेप और साइज चेंज हो गया। ओके, सो बट अगर मैं उसी वुड को बर्न कर दूं तो वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्यों होगा, क्योंकि वो कौन सी गैस इवॉल्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया जब मैं वुड को बर्न करूंगी 2 चेंजेस होंगे। एक तो क्या होगा कि वो एशेज उसके बिल्कुल ऐसे काले काले से एशेज रह जाएंगे बाद में बर्न होने के बाद, तो बिल्कुल वो चेंज हो गया, अब वो वुड बिल्कुल नहीं लग रही। और दूसरा चेंज क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए वो क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, बर्निंग केमिकल चेंज है बट कटिंग इज अ फिजिकल चेंज। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन 7 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हमें क्या करना है, वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसके बाद उसको डिजोल्व करना है एंड देन हमें उसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है। तब तक डालना है जब तक डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाता एंड देन आफ्टर दैट फिर हमें उसको ओवरनाइट छोड़ देना है। तो जो अगर हम उसके अंदर कोई थ्रेड डिप कराए तो थ्रेड के ऊपर कॉपर सल्फेट एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर उसके बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो ये क्या, फिर हम उसको प्योर क्रिस्टल फॉर्म में कॉपर सल्फेट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और वो एकदम प्योर फॉर्म होगी। जब भी हमें किसी चीज़ की प्योरिफिकेशन करनी है, बिल्कुल प्योर फॉर्म चाहिए, तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैंने फिर से बता दिया। ओके, सो ये करेंगे हम सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो जब हम क्या करते हैं, मेरे पास सपोज ये आयरन गेट है, ऑलराइट। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको दोनों साइड से आगे पीछे से मैंने इसको अच्छे से किससे कवर कर दिया, पेंट से कवर कर दिया। तो जब मैंने इसको पेंट से कवर किया तो ये ऑक्सीजन इस पर अटैक नहीं कर पाएगी क्योंकि एक कोटिंग आ गई एंड जो मॉइस्चर है वो भी इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, वाटर। तो क्या हो गया, दोनों से प्रोटेक्ट हो गया। तो दोनों से प्रोटेक्ट हो गया तो अंदर का जो आयरन है वो सेफ है, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑक्सीजन एंड वाटर इन दोनों की प्रेजेंस में ही रस्टिंग होगी। अगर एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी। तो दोनों को ही मैंने कट कर दिया, जब दोनों को कट कर दिया तो रस्टिंग नहीं होगी। ओके, बट ये टेम्परेरी है क्योंकि बार बार पानी लगने से, बार बार पानी लगने से, मॉइस्चर लगने से क्या होगा, पेंट रिमूव हो जाएगा। तो मुझे बार बार फ्रीक्वेंटली पेंट करना पड़ेगा। तो ये इसको हम टेम्परेरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सप्लेन 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। तो आपको पता है जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हमें पता है वहाँ पे बहुत बारिश भी होती है। ऐसा आपको पता है केरला में, साउथ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑनसेट मानसून, मतलब वहाँ पे दो बार मानसून आता है, ऑनसेट मानसून भी एंड रिट्रीटिंग मानसून भी, तो 2 टाइम बारिश हो रही है। तो डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में तो हमें पता है मॉइस्चर है ही नहीं, बारिश ही बहुत कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कोई आयरन डेजर्ट में छोड़ दूंगी तो वो बहुत धीरे धीरे रस्ट होगा, बट अगर मैं कोई आयरन को कोस्टल एरिया में छोड़ दूंगी तो वहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग बहुत फास्ट होगी। इसलिए आपको पता, आप कभी ऑब्जर्व करना या फिर आप पूछना कभी, कोई आपको कोई फ्रेंड हो, आपको कोई रिलेटिव अगर साउथ में रहता है, साउथ में उनके जो गेट्स हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंट पेंट करना पड़ता है, उनको अपने आयरन आर्टिकल्स को ज़्यादा सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट में, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, और ऑक्सीजन तो गैस है ही, वो अवेलेबल है। तो जब दोनों चीज़ें सूटेबली हाई अमाउंट में अवेलेबल हैं तो रस्टिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बट डेजर्ट में मॉइस्चर नहीं है और हमें पता है कि दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, अगर दोनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो रस्टिंग फास्ट नहीं होगी, रस्टिंग स्लो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन, द गैस we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas। ये हमें पता है, LPG बोलते हैं हम उसको। ओके, in the cylinder it exists as a liquid, when it comes out from the cylinder it become a gas, change A, then it burn, change B। The following statement pertains to these changes, choose the correct one। Process A is a chemical change, process B is a chemical change, both processes A and B are chemical change, none of these processes is a chemical change। ओके, सो उसने हमसे क्या बोला कि जब हम एक सिलेंडर होता है, जब मैं आपको दिखाती हूँ, जो सिलेंडर होता है हमारा, जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उसमें जो गैस होती है वो किस फॉर्म में होती है, अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बट जब वो बाहर आती है तो वो कौन सी फॉर्म में आती है, गैसियस फॉर्म में बाहर आती है। तो ये जो प्रोसेस है, जो जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, सिंपली फिजिकल चेंज है। बिल्कुल देखो, अंदर लिक्विड था, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। अंदर लिक्विड था, जब हमने उसको बर्न किया तो बाहर वो गैस फॉर्म में निकला, तो लिक्विड की फॉर्म में वो अंदर स्टोर थी, बट वो जब बाहर निकली तो गैस की फॉर्म में निकली। सिंपली क्या चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ। तो ये वाला जो ए प्रोसेस है, ए प्रोसेस तो हमारे पास फिजिकल चेंज है, ये तो हमें क्लियर हो गया। ओके, बी प्रोसेस उसने हमसे क्या बोला है, बी प्रोसेस में क्या हो रहा है, देन इट बर्न्स। अब वो क्या हो रहा है, अब वो गैस बर्न हो रही है और हमें क्या दे रही है, हीट दे रही है या फिर लाइट दे रही है। तो ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। तो जो प्रोसेस बी है वो हमारे पास कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वो कुछ नया बना रही है, कुछ नया बन रहा है, हीट मिल रही है हमें, लाइट मिल रही है हमें, लाइट जल रही है, नीली नीली लाइट जलती है, ब्लू ब्लू लाइट जलती है ना नीचे फ्लेम में, तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बताओ सही है, प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, नहीं, वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल वो केमिकल चेंज है, तो आंसर क्या हो गया, 2। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने आप आंसर मिल जाएगा, हमने सब कुछ सारे टॉपिक क्लियर कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में। ओके, तो उनको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। तो क्या करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, एनिमल वेस्ट को, जो एनिमल वेस्ट होता है जैसे काउ डंग होता है, उसको डाइजेस्ट करके वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कौन सा चेंज है, आप खुद बताओ कौन सा चेंज है। पहले कुछ नया बन रहा है, मीथेन गैस निकलती है, कुछ नया बन रहा है, तो कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। यहीं पे पता चल गया हमें डायरेक्टली। ओके, द बायोगैस इज देन बर्न एज फ्यूल। जब फिर हमने उस गैस को बर्न किया एज अ फ्यूल तो हमें क्या मिली, हीट मिली और लाइट मिली। तो ये कौन सा चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। तो इसमें दोनों चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंज है। ओके, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस आर। तो बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। तो आंसर क्या हो गया, 3। ऑल राइट, तो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए बैक एक्सरसाइज के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।